introduction to Dr. Parvez Amir Ali Hudhoi, I would like to briefly tell about his contributions for promotion of science. There are long lists coming, so please brace yourselves, and I will try to speak very quickly. The institutions he has been associated with, either as a regular faculty member or as a visiting faculty member or as an associate researcher, Quaid-e-Azam University, Islamabad, National Center for Physics, Islamabad, Forman Christian College, Lahore, Virtual University of Pakistan, University of Engineering and Technology, University of Washington, Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute of Technology. I practiced that, but okay, MIT. Stanford Linear Accelerator Center, Carnegie Mellon University, University of Maryland, Pugwash Conference on Science, and Lahore University of Management Sciences. His fields of his research interests are in the fields of nuclear physics, quantum field theory, particle phenomenology, high energy physics. He has worked on generalized pattern distributions. He has made mathematical contributions related to Malesina conjecture and empty de Sitter space and its extension to the field of holography. There are many more of his publications, but as I couldn't find a way to copy-paste them, so I just stopped at this. It was hard for me to type all of them. Okay, awards and honors. Baker Award for Electronics, Abdus Salam Award for Mathematics, Faiz Ahmed Faiz Award for contributions towards the cause of education in Pakistan, UNESCO Kalinagar Prize for popularization of science in Pakistan, Burton Award, Jean Mayer Award, Book of the Year Award by National Book Council of Pakistan, Fulbright Award for Research at University of Maryland, Selma V. Fox Prize, International Advisory Council of Brookings Doha Center, Civic Courage Award, Outstanding Research Award given by Pakistan Science Foundation. I don't think so, I should have mentioned it here, but he declined Sitara Imtiaz. Included in the list of 100, he is included in the list of 100 most influential global thinkers by Foreign Policy magazine. He is a member of United Nations General Advisory Board on Disarmament. He is a sponsor of the Bulletin of Atomic Scientists, member of the Permanent Panel on Terrorism of the World Federation of Scientists, executive member of the board of Riazuddin National Center for Physics. He has been awarded with Student of the Year by Pakistan Students Association of America, Rockefeller Moss Fellowship for Graduate Studies. His TV serials and film, The Bell Tolls for Planet Earth, won honorable mention at the Paris Film Festival. He has been an associate of Abdus Salam International Center for Theoretical Physics. His literary contributions, he is author of Islam in Science, Religious Orthodoxy and Battle of Rationality, now in 8 languages. Education and the State, 50 Years of Pakistan, Confronting the Bomb, Pakistani and Indian Scientists Speak Out. His articles, there's a complete repository of articles at hudhoi.blogspot.com. And Hudhboy's articles are also at twitter.com at Parvez Hudhboy. He has written for Project Syndicate, Dawn, the New York Times, and the Express Tribune. He has been head of Mashal Books. It's a major translation effort to produce books in Urdu that promote modern thought, human rights, and emancipation of women. Filmography. These documentaries carry heavy emphasis on the issues of education, public health, and scientific revolution in Pakistan.
There is a 13-part documentary series in Urdu for PTV on critical issues in education, 2 series aimed at popularizing science. The documentary films Crossing the Lines, Kashmir, Pakistan, India, The Bell Tolls for Planet Earth, Pakistan and India Under the Nuclear Shadow. His video lectures in a distance learning program, they are available, all the lectures are available at Iqbal Ahmed Center for Public Education, www.escape.org and fcccollege.edu.pk. Okay, now we're back to our quiz, and this time please raise your hands. The question I asked in the beginning was, I was wondering that whether Dr. Parvez Bhutbhoy is really a public figure or not. Which of the following 3 snapshots is of Parvez Bhutbhoy? A. How many of you think that this is Parvez Bhutbhoy? Okay. How many think this is Dr. Parvez Bhutbhoy? Are you sure? Okay, now how many think that this is Dr. Parvez Bhutbhoy? Okay, now I should tell you the answer, but I have come to the conclusion that he is really a public figure because he selected the picture which most resembled him, but the correct answer is A. Please join me in welcoming Dr. Parvez Bhutbhoy. Thank you, Fariha. I am quite daunted by this introduction. जब मैं सन 73 में वापस आया पाकिस्तान, 4 साल के लिए गया था अमेरिका पढ़ने के लिए, तो उसके बाद मेरा हुलिया वो हो गया था जो आपने देखा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वालदा ने पहचानने से इनकार कर दिया। खैर, उसके बाद फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आ गया, और हालांकि फरिया ने आपको बताया कि मैं इन मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ वक्त तो ज़रूर गुजारा है FC कॉलेज में, 2 साल लम्स में भी गुजारे थे, लेकिन बाकी 40 साल तो मैं यहाँ पर रहा हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और अब भी मैं इसको अपना घर समझता हूँ। आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो, मुझे भी थोड़ी सी हो, इसलिए कि हम एक ऐसे वक्त पर यहाँ मौजूद हैं जब साइंस ने एक जबरदस्त इंकशाफ किया है, एक दरियाफ्त हुई है जिससे सारी दुनिया में, साइंस की दुनिया में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही है। आप जानते हैं कि ये किस वजह से, और उसी वजह से आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्योंकि आज से कोई 1300 मिलियन साल पहले 2 ब्लैक होल्स जो आसमान में एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, बिलाखिर आपस में टकराते हुए उन्होंने एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल वेव्स का पैकेट खारिज किया जो हम तक पहुंचा।
1300 मिलियन साल के बाद। और क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स की रफ्तार वही है जो रोशनी की रफ्तार है, तो इसका फासला भी 1300 नूरी साल के बराबर बनता है। ये कैसे हुआ और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करने से कबल मैं थोड़ा सा आपको ग्रेविटी और ज़मान और मकान, स्पेस और टाइम के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रेविटी वो कुव्वत है कशिश सब जो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। और अगर दो भारी अजसाम हो, एक यहां पर और एक यहां पर, इनके दरमियान एक कुव्वत अमल करती है जो इनको जोड़ने की कोशिश करती है, और इससे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो न्यूटन के जमाने में महज ये कहा जा सकता था कि अगर ये मास ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, गोया कि ये भारी और ये भारी है, तो ज्यादा कुव्वत अमल करेगी। और ये कि अगर आप इनके दरमियान फासला बढ़ाते जाएंगे तो ये कुव्वत कम होती जाएगी। सो दिस वाज अ डिस्क्रिप्शन, नॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रेविटी इज। खैर, बहुत कामयाब डिस्क्रिप्शन था, इसलिए कि ग्रेविटी को अगर आप यूं समझें तो न सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि पत्थर किस रफ्तार से नीचे गिरता है, लेकिन ये भी मालूम कर सकते हैं कि चांद जमीन के गिर्द क्यों घूमता है, जमीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है, इनके टाइम पीरियड्स कितने होंगे, कितना वक्त लगेगा एक चक्कर काटने में, वगैरह वगैरह। तो ग्रेविटी के बारे में हमें काफी कुछ मालूम था, लेकिन सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव लेवल के ऊपर। ये नहीं पता था कि इसकी असलियत क्या है। न्यूटन के जमाने में ये सोचा गया था, और ये सोच आम थी, सिर्फ न्यूटन की नहीं थी, तमाम उस जमाने के साइंसदानों की थी। और ये सोच हमेशा से रही थी, अज़ल से रही थी, सन 1905 तक। वो सोच ये थी कि स्पेस एक अटल चीज है, एक एब्सोल्यूट चीज है। मतलब ये कि अगर आप और मैं इस बात पर इत्तेफाक करें कि ये एक, अगर मैं कहूं, चलिए इत्तेफाक आप ना करें अब तक, अगर मैं कहूं कि ये 1 मीटर है, तो आप भी कहेंगे कि ये 1 मीटर है, खा आप मुझसे दूर हो, नजदीक हो, या हरकत में हो, या कहीं और जगह हो। ये भी सोचा गया था कि वक्त भी एब्सोल्यूट है, गोया कि एक सही वक्त है सारी कायनात के लिए। और यूं समझ लीजिए कि कायनात का कोई मरकज है, उस मरकज पे एक घड़ी रखी गई है, और वो घड़ी सही वक्त बताती है, और पूरी कायनात के लिए वो वक्त सही होगा। दैट इज द यूनिवर्सल टाइम। फिर सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो उस वक्त एक 24 साल का नौजवान था, वो एक मसाइल के ऊपर सोचता रहा, और ये सोचता रहा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कानून, जो मैक्सवेल के कानून है, मैक्सवेल उससे 100 साल पहले का साइंसदान था, अगर मैक्सवेल के कानून दुरुस्त हैं, तो फिर दुनिया कैसे नजर आएगी अगर मैं रोशनी के साथ सफर करता चला गया। इस सोच ने बिलाखिर उसको मजबूर किया, आइंस्टाइन को मजबूर किया कि एक नए नजरिए पर वो पहुंचे। वो नजरिया ये कि जो फासला मैं देखता हूं, वो वही फासला आप देखेंगे, बशर्ते कि आप साकिन हो या बहुत ज्यादा तेजी से हरकत ना कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी हरकत की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के नजदीक पहुंचती है, तो आप ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। फिर आइंस्टाइन ने मजीद ये जाना, और ये सारी थ्योरेटिकल रीजनिंग की मदद से, कि अगर
मेरी घड़ी एक मिनट का, फर्ज कीजिए कि दो वाकयात होते हैं, एक ये, इनके दरमियान जो दौरानिया है मेरे मुताबिक 1 सेकंड है। आपके मुताबिक 1 सेकंड होगा बशर्ते कि आप हरकत में ना हो, साकिन हो। लेकिन अगर आप तेजी से हरकत कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड है या 3 सेकंड है, या हो सकता है कि 100 सेकंड देगी। तो आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम के बारे में जो नजरिया पेश किया वो ये कि दे आर रिलेटिव, कि आप वक्त और जमान दोनों को, वक्त और मकान, वक्त और लेंथ, इन दोनों को, इन दोनों की असल में कोई एब्सोल्यूट कीमत नहीं होती, ये रिलेटिव है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन उसके 11 साल बाद, यानी कि सन 1916 में, आइंस्टाइन ग्रेविटी की हकीकत के ऊपर गौर करने लगा और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर कोई भारी जिस्म हो तो उस जिस्म के गिर्द जमान और मकान खमदार हो जाएंगे, दे बिकम कर्व्ड। अब इसको मैं ज्यादा तफसील से नहीं समझा सकता, इसलिए कि इसके पीछे काफी गहरी मैथमेटिक्स होती है, उसको समझने के लिए कई साल चाहिए होते हैं, और अब हमारे पास सिर्फ कोई आधा पौना घंटा है, लिहाजा मैं इसको सादा जबान में बयान करने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए कि आप एक मैट्रेस के ऊपर बैठते हैं या चारपाई के ऊपर बैठते हैं, तो जहां आप बैठेंगे उधर वो चारपाई या मैट्रेस धंस जाएगा, वो हमदार हो जाएगा, इट विल बी कर्व्ड। इसी तरह से जब कोई भारी जिस्म होता है तो उसके इर्द गिर्द स्पेस टाइम कर्व हो जाता। ये सन 1916 और 17 ही की बात है कि आइंस्टाइन ने फिर मजीद ये सवाल किया कि फर्ज कीजिए कि इस मैट्रेस, मगर ये मैट्रेस नहीं है क्योंकि मैट्रेस तो डैम्प्ड होता है, लेकिन मतलब ये कि आप उसमें वाइब्रेशंस नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक रबड़ की चादर हो, उस रबड़ की चादर को कहीं से आपने झंझोड़ा, यूं हिलाया, तो उससे जो लहरें निकलेंगी वो फिर रबड़ की चादर के हर तरफ फैल जाएंगी। सो दीज वुड बी वेव्स ऑन द रबर शीट। अब आप अगर स्पेस टाइम को एक रबर शीट की मानंद समझें, और अगर एक जगह पर आप स्पेस टाइम को झंझोड़ें, somehow, let's forget how, किसी तरह से आप उसको झंझोड़ दें, तो उस एक नुक्ते से ये लहरें बाहर की तरफ निकलेंगी और ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। अच्छा, अब ये जो मैट्रेस है, ये जो रबड़ की चादर है, ये कभी बाहर की तरफ फैलती है और फिर अंदर, लेकिन दूसरी तरफ ये यूं फैलती है और यूं सुकड़ती है। तो ये देख लीजिए, यहां पर एक ग्रिड है, इस ग्रिड के ऊपर ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स रखे गए हैं, तो ये कभी दूर होते हैं, कभी नजदीक आते हैं, और इसी तरह ये कभी दूर होते हैं, कभी नजदीक आते हैं, लेकिन जब ये दूर होता है तो ये नजदीक होता है, और जब ये नजदीक होता है तो ये दूर होता है। जिसका मतलब ये कि अगर एक ग्रेविटेशनल वेव मेरी तरफ यूं आ रही हो तो मेरी लंबाई कभी बढ़ जाएगी और कभी कम हो जाएगी, कभी मैं फैल जाऊंगा और कभी सिकुड़ जाऊंगा। ये और बात है कि वो अमाउंट, वो मिकदार बहुत बहुत कम होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव का असर यह है कि स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये भी वही तस्वीर है।
अच्छा, तो अगर ये कोई ग्रेविटेशनल वेव्स का मंबा है, उसका सोर्स है, तो उससे फिर ये लहरें फैलती चली जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्यों पैदा होती हैं, उनको पैदा करने के लिए, बनाने के लिए क्या कुछ दरकार है। मुख्तलिफ सोर्सेस हो सकते हैं। एक सोर्स ये है जिसे रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो अब मुझे आपको थोड़ा सा बताना होगा न्यूट्रॉन स्टार और सितारों के बारे में। एक सितारे के अंदर, अच्छा, अब बहुत सी बातें हैं सितारों के बारे में जो कही जा सकती, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये बताना चाहूंगा कि हर सितारा पैदा होता है और हर सितारा मरता भी है। ये सिर्फ हम नहीं हैं जो पैदा होते हैं और मरते हैं। वो सितारे जो आसमान में आप देखते हैं, हर एक की पैदाइश हुई थी और हर एक इनमें से मरेगा। सितारे की मौत क्यों आती है? इसलिए कि उसका ईंधन खत्म हो जाता है। जिस तरह आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन एक सितारा रुक नहीं सकता। एक सितारे को फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो अब सितारे के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो हाइड्रोजन के जलने से पैदा होता है, जिससे बड़ी गर्मी और तवानाई पैदा होती है। जब गर्मी होती है तो गैस के अंदर दबाव पैदा होता है। तो एक सितारा चाहता यह है कि वो फैले, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेविटी की वजह से वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। जब ये दोनों कुव्वतें बराबर होती हैं तो एक सितारा ना फैलता है ना सिकुड़ता है, वो अपने एक हाल में रहता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे एक सितारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो उसके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ सितारे तो बड़े शरीफ होते हैं, वो खामोशी से चुपचाप मर जाते हैं। कुछ पर ये मौत का ख्याल बहुत भारी गुजरता है, वो फट जाते हैं। उनको सुपरनोवा कहते हैं। नोवा यानी कि स्टार, सुपरनोवा सुपर स्टार दैट हैज एक्सप्लोडेड। और उसकी गुठली में इस तरह का न्यूट्रॉन स्टार रह जाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार घूमता है और इसके घूमने से ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। एक और तरीका जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हो सकती हैं कि अगर दो सितारे एक दूसरे के गिर्द यूं चक्कर लगा रहे हैं, तो जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनसे ग्रेविटेशनल वेव्स खारिज होती हैं और फिर ये तवानाई उस जगह से दूर ले जाती है। अब क्योंकि ये तवानाई दूर ले जाती हैं तो इन दो सितारों का घूमना फिर ज्यादा तेज होता जाता है, ये एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और बिल आखिर ये एक दूसरे को छूते हैं। अब ये सितारे न्यूट्रॉन स्टार्स भी हो सकते हैं, मगर ये एक और तरह का सितारा भी हो सकता है, मुर्दा सितारा, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। और थोड़ा सा मैं अब आपको ब्लैक होल के बारे में बताता हूं। बहुत से सितारे हैं, सारे नहीं, लेकिन बहुत से सितारे हैं जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है, गैस का दबाव नाकाफी हो जाता है, तो वो सुकड़ते सुकड़ते इतने ज्यादा कसीफ, डेंस हो जाते हैं कि सुकड़ते सुकड़ते वो एक नुक्ता बन जाते हैं।
और उस सितारे का जो तमाम मास है, जो हमारे सूरज से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, वो एक नुक्ते के अंदर जम हो जाता। इस नुक्ते के अतराफ में ग्रेविटी इतनी ज्यादा शदीद हो जाती है कि यहां से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, हत्ता कि रोशनी भी यहां से नहीं निकल सकती। तो आसमान में बहुत से ऐसे सितारे हैं जो मुर्दा सितारे हैं, ब्लैक होल्स हैं। और ये तस्वीर 2 ब्लैक होल्स की है जो एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटते 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 आखिर एक दूसरे के साथ मिल गए। और जो खबर आपने 10 दिन पहले, 2 हफ्ता पहले सुनी थी, वो 2 ब्लैक होल्स के जुड़ जाने की थी, जिसके बाद एक अजीम धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई और 1300 मिलियन साल के बाद वो हम तक पहुंची। जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं तो ये लाखों सालों तक घूम सकते हैं, लेकिन इनका जो आखिरी साल है, यानी जुड़ जाने से 1 साल कबल की बात है, तो इसको इंस्पायरल कहते हैं, which means that they're coming closer and closer to each other। फिर ये एक दूसरे को बस छूते हैं और उसके बाद ये आखिरी अंजाम है। हर स्टेज से, हर मरहले पे एक खास फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव निकलती है और उस पैटर्न को देखकर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के इस्तेमाल से आप जान सकते हैं कि ये ब्लैक होल्स का मास कितना था, कि ये कितने दूर थे किसी एक वक्त पर, और ये सब आने वाले सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। मसलन ये एक फार्मूला है, this is the frequency of the last stable orbit, which is 2.2 kilohertz, mass of the sun divided by the sum of the masses of the 2 black holes। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ये एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो इससे डबल होगी, 2 times the रोटेशन फ्रीक्वेंसी। और ये 2 ब्लैक होल्स अब बस कोलाइड करने वाले हैं। मैं जानता हूं पीछे से ये आप लोग नहीं देख सकते, तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूं। फर्ज कीजिए कि 2 ब्लैक होल्स हैं, दोनों के मासेस बराबर हैं। ये ब्लैक होल सूरज से 10 गुना भारी है, वो ब्लैक होल भी सूरज से 10 गुना भारी है। तो ये बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ब्लैक होल में जो सारा मादा है वो एक नुक्ते के ऊपर आ चुका है, लेकिन उसके गिर्द एक इवेंट होराइजन है जिसको हम ब्लैक होल का रेडियस कहते हैं, वो भी बहुत छोटा है, सिर्फ 30 किलोमीटर का है। सूरज तो बहुत बहुत बड़ा है। ये तो बस आप समझ लीजिए कि एक मुट्ठी बराबर की चीज है। जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका मास 20 सोलर मैसेस के बराबर नहीं होगा, वो घट के कोई 16 सोलर मैसेस के बराबर होगा, यानी कि 4 सोलर मैसेस फिर एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे। और ये आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी है। तो हमारा सूरज तो 4.5 अरब साल पुराना है। अगर ये 2 मिनट के अंदर यूं खत्म हो जाए और अपनी सारी तवानाई खारिज कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा क़यामत का मंजर होगा।
लेकिन ये दो नहीं, ये 4 सोलर मैसेज, ये एक सोलर मैसेज नहीं, 4 सोलर मैसेज हैं। अब जो ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे और जिनको हमने जमीन पर अब देखा है, एक का सूरज से 36 गुना ज्यादा मास था और दूसरे का 29 गुना ज्यादा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो इससे फ्रीक्वेंसी निकलती है, जब घूमते हैं तो उससे जो ग्रेविटेशन वेव की फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 200 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 800 साइकिल्स पर सेकंड के लगभग है। हर्ट्ज भी कहते हैं, HERTZ। अब आप ये जानते हैं कि हम तकरीबन 30 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 20,000 तक सुन सकते हैं। We can hear frequencies between 30 and 20,000 cycles per second. अगर आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को हम साउंड वेव्स में तब्दील करें तो ऐसे लगेगा जैसा कि बादल गरज रहे। तो बादलों की गरज की फ्रीक्वेंसी और दो ब्लैक होल्स के टकराने की फ्रीक्वेंसी तकरीबन बराबर है। दूसरी दिलचस्प बात ये कि जमीन तो चलिए बहुत बहुत दूर है, 1300 मिलियन नूरी साल दूर है उन दो ब्लैक होल से जो टकराकर एक ब्लैक होल बन गया। अगर उस एनर्जी को हम मुकम्मल तौर पर पकड़ सकते जमीन पर रहते हुए तो उसकी जो शिद्दत है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स वो गरजते बादलों के बराबर की होती। मतलब ये कि अगर आपके कान ऐसे हो सकते कि उस तमाम एनर्जी को आप इन कानों में पकड़ सकते, then you would hear thunder from 1300 million light years away. ये एक्चुअल तस्वीर है। यहाँ शुरू में फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, फिर उनके टकराने से पहले अचानक इसके एम्पलीट्यूड, इसके साइज में इजाफा होता, बहुत बढ़ता है और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। ये खामोशी इसलिए कि अब वहाँ सिर्फ एक ब्लैक होल रह गया है जो अकेला है, जिससे अब ग्रेविटेशनल रेडिएशन नहीं निकलेगी। अच्छा, अब आइंस्टाइन ने तो 1916 में ये पेशेनगोई की थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन उस वक्त आइंस्टाइन खुद इस बात को नहीं मानता था कि कभी इन्हें देखा जा सकेगा, क्योंकि ये इतनी कमजोर होती है। कितनी कमजोर होती है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी। तो आइंस्टाइन को उम्मीद नहीं थी, उसके 50 साल बाद तक भी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन फिर पिछले 40-50 साल में टेक्नोलॉजी इस जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ी है कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद हमें ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो पहली कोशिश थी वो ये कि एक बहुत बड़ा स्टील बार जो उधर से इस स्टेज के बराबर था और जिसकी चौड़ाई इतनी थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में बनाया गया। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव जब आती है आपकी तरफ तो आप यूं लंबे हो जाएंगे और फिर सिकुड़ेंगे और फिर इसमें इस डायमेंशन में वाइब्रेशंस होंगी, इस डायमेंशन में भी वाइब्रेशंस होंगी। वाइब्रेशंस बहुत मामूली हैं। कितनी मामूली है? आप कहेंगे कि वो एटम बहुत छोटी चीज है, मगर ये एटम से 10,000 गुना छोटी वाइब्रेशंस है।
लिहाजा अब मसला ये पैदा होता है कि आप इतनी बारीक, इतनी छोटी वाइब्रेशंस को कैसे देख सकते हैं, जबकि हर चीज उस बार को वाइब्रेट करती है। अगर यूं मैंने पाँव नीचे किया तो, और मैं 2 मील दूर हूं, तो वो बार वाइब्रेट करने लगेगा। अगर ऊपर से कोई चिड़िया गुजर जाए, उससे भी वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि चिड़िया का भी कोई मास है और उससे फिर उसकी ग्रेविटी है। लिहाजा इसको हर मुमकिन ग्रेविटेशनल सोर्स से दूर रखना जरूरी था। अच्छा, तो ये देखना बहुत ही मुश्किल था। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल है। तो ये लीजिए, ये एक स्टील बार है, एक लोहे का, आपने अगर एक बड़ी सी सलाख तो नहीं कहना चाहिए, जैसे बार, ये 2 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर ऊंचा है, और अगर इसको 5 दफा 1 सेकंड में घुमाएं तो इससे जो ग्रेविटेशनल वेव की पावर निकलेगी, दैट विल बी ओनली 10 to the power -29 watts। ये जो ऊपर आपने ये जो रोशनी का मम्बा है, जिसको हम बल्ब कहते हैं, इस बल्ब की ताकत कोई 200 वाट तो होगी मेरे ख्याल में। मगर यहां 0.0000000 कितने सिफर? 28 सिफर आपको लगाने होंगे। इतनी भारी चीज घुमाने से इतना मामूली पावर मिलता है। अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं। एक हाइड्रोजन बम आप फाड़ें और उससे 10 किलोमीटर दूर आप खड़े हो, तो जो पावर आप महसूस करेंगे ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, दैट विल बी 10 to the power -11। चलिए उससे तो ज्यादा है। अब आपको सिर्फ 10 सिफर लगाने हैं, तो वो भी बहुत मामूली, और ये हाइड्रोजन बम फटा है। लेकिन जब सितारे फटते हैं तो फिर ठीक ठाक ग्रेविटेशनल वेव बनती है। सुपरनोवा, वो सितारा जो फटा है, उससे 10 ताकत 44 10 to the power 44 watts निकलते हैं। So 10 multiplied by itself 44 times। और जब 2 ब्लैक होल्स टकराते हैं तो उससे कहीं ज्यादा पावर बरामद होती है। लिहाजा सबसे ज्यादा उम्मीद तो इसी से थी, ब्लैक होल्स के टकराने से, और ये वो चीज है जो एक्चुअली देखी गई। अब मैंने आपको, चलिए हम इस बात पे आज बहुत खुश हैं कि ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल वेव्स देखी गई, लेकिन एक लिहाज से तो हमें पता था कि ये हैं, और उस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था गालिबन 2003 में, शायद साल मुझे ठीक याद नहीं, टू दीज 2 पीपल, हल्स एंड टेलर। उन्होंने भी एक बाइनरी सिस्टम को देखा था, 2 सितारे जो एक दूसरे के गिर्द यूं चक्कर काटते हैं, और उन्होंने ये देखा कि उनका जो जिस रफ्तार से इनकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ रही है और जो शिद्दत में इन तब्दीली आ रही है, ये ऐन वही है जो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पेशन गोई है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो इससे खारिज होती हैं, वो इन 2 सितारों को बिलाखिर नजदीक पहुंचाती है, एंड इट्स ब्यूटिफुली प्रेडिक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। तो ये जो ग्राफ है यहाँ, ये इस बात की दलील है कि ग्रेविटेशनल वेव्स वजूद रखती हैं, मगर ये इनडायरेक्ट तरीका था। जो अब हमने देखा सो डायरेक्ट है। अब कैसे देखा गया? ये वो ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है लाइगो,
लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, एक इस तरह का apparatus वाशिंगटन स्टेट में है अमेरिका में, और दूसरा लुइजियाना में, और इन दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला है। तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स ऊपर से पहुंची तो ये दोनों जगहों पर देखी गई एक ही वक्त पे -10 मिली सेकेंड्स। वो इसलिए के उनके सोर्स, वो इसलिए के ग्रेविटेशनल वेव्स की अपनी एक स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये कैसे, हाँ ये वाहिद नहीं है। इस तरह जर्मनी में है, छोटा है अलबत्ता, ये 4 किलोमीटर है, ये आर्म 4 किलोमीटर का है, ये भी 4 का है। जर्मनी में एक है जो 600 मीटर का है, एक जापान में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, और ये इटली में है, और सुना है कि अब एक इंडिया में भी बन रहा है। अच्छा, इसकी तरफ मैं वापस आता हूं, मगर देखिए इसका प्रिंसिपल मैं आपको समझाता हूं। हमने कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। तो ये लाइगो का एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है ऊपर से नीचे तक। ग्रेविटेशनल वेव उधर से जब आई तो एक आर्म ऊंचा होता है और फिर सिकुड़ता है, दूसरा फैलता है फिर सिकुड़ता है। लेकिन ये जो फर्क है छोटे और बड़े में, दिस इज 1/10,000 ऑफ द साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एक प्रोटॉन के बराबर का फासला, जिससे इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में फर्क है। तो आप ये कैसे देखेंगे? हाउ विल यू सी समथिंग दैट इज ऑन सच ए टाइनी स्केल? उसके लिए फिर ऐसे होता है कि यहां से एक लेजर बीम यहां की तरफ रवाना होती है, टकरा कर वापस आती है, और फिर वही बीम यहां जाती है और फिर वापस आती है। तो इनमें जब दोनों फासलों में थोड़ा सा फर्क होता है तो उससे इनके दरमियान इंटरफेरेंस पैदा होती है। उस इंटरफेरेंस को देखकर फिर हम जान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव एक्चुअली पहुंची है। मसले बहुत हैं, ज़लज़ले, किसी का गुजर जाना वहां से, गाड़ी का 10 मील दूर से गुजर जाना, फिर उन चीजों से भी आप बच सकते हैं। फिर इसके जो अपने क्वांटम मैकेनिकल लिमिटेशंस हैं, जिसकी मैं ज्यादा तफसील नहीं बता सकता, लेकिन ये सब कुछ, ये तमाम मसाइल एक के बाद हल कर दिए गए। अब हालांकि वो वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स सितंबर में पहुंची थी लाइगो में, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, दोनों लाइगोस की बात है, एक जो लुइजियाना में, एक जो वाशिंगटन में। उन्होंने कहा कि हम इसको अनाउंस नहीं करेंगे, किसी को इजाजत नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं कर सके। तो सितंबर से लेकर फरवरी कितने महीने बने? 5 महीने के दौरान उन्होंने हर मुमकिन सोर्स ऑफ एरर को, इसको दोबारा करें, हर मुमकिन सोर्स ऑफ एरर को आइडेंटिफाई किया। और जब मुकम्मल तसल्ली हो गई कि अब कोई चीज रह नहीं गई है, तब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वी हैव डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा, इसका ओके, गुड। अब देखिए, ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स अब हर जगह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
बहुत सी जगहों पर अब बने हैं। कुछ साल पहले, मुझे याद है कोई 20-25 साल पहले, एक प्लान था कि बलूचिस्तान में हम एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लगाएंगे, और ये जापान की तरफ से एक पेशकश थी, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कई महीने लगा दिए। एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें मैं गया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, बात खत्म। But now there is something much bigger. ये देखें, ये 4 किलोमीटर है ना, और ये जो दूसरे अब बन रहे हैं, एक 600 मीटर है, यानी कि 0.6 किलोमीटर। अब ये सोचा जा रहा है कि अब इसके ऊपर काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, और अगले 2 या 2.5 साल के अंदर खला में ये 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे। ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर होगा, इसका नाम भी रखा गया है लेजर इंटरफेरोमेट्री स्पेस एंटेना, लीसा, LISA। और ये आप देख सकते हैं, ये जमीन है, ये चांद, ये दूर खला में होगा कहीं पर, और इसका जो आर्म है 4 किलोमीटर नहीं, दिस विल बी 2 मिलियन किलोमीटर्स। अब why am I so happy? Why should we all be so happy? Why are they so exciting? इसकी तरफ था। एक तो ये, हम मुख्तलिफ किस्म के सितारों के जोड़ों को हम देख सकेंगे जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के साथ टकरा सकता है, ब्लैक होल के साथ, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार के साथ। बस ये जरूरी है कि एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो दिस वाज द इजीएस्ट थिंग टू सी। लेकिन हमने तो एक ऐसा जोड़ा देखा जो कदरे नजदीक है। हाँ ठीक है, 1300 मिलियन साल दूर है, बहुत दूर है, लेकिन लीसा की मदद से we will be able to see 3, 4, 5 times further, जिसका मतलब ये कि हमें बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे जहां ये धमाके होते हैं, ये आपस में आके टकराते हैं। फिर हम न्यूट्रॉन स्टार्स को देख सकेंगे, न्यूट्रॉन स्टार्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स खारिज करते हैं। इसके अलावा इतनी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बस अभी सोचा ही जा रहा है। आप सब लोगों ने डार्क मैटर के बारे में सुना होगा, जो मुख्तसरन बताता हूं। जो मादा हमारे इर्द गिर्द है उसको हम देख सकते हैं, इसलिए कि रोशनी आती है, टकराती है, इस मादे से टकराती है और फिर आपकी आंखों में दाखिल होती है। हम इसको ऑर्डिनरी मैटर कहते हैं। लेकिन डार्क मैटर वो मादा है कायनात के अंदर जिसमें से रोशनी गुजर जाती है और जिससे कोई रोशनी निकलती नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे देख सकते हैं? रोशनी से तो नहीं देख सकते। और अब तक हमने कायनात के बारे में जो कुछ मालूम किया है वो रोशनी की मदद से किया है। एवरीथिंग, ऑल द स्टार्स, या तो हमने दूरबीनों से देखा है, या एक्स-रे टेलीस्कोप्स, या गामा रे टेलीस्कोप्स, या रेडियो वेव्स, इन सब की मदद से देखा। दीज आर ऑल रेडियो वेव्स, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन अब हमारे पास एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया है ग्रेविटेशनल वेव्स का, जिससे हम कायनात की वुसअतों के अंदर देख सकते हैं, जिससे हम डार्क मैटर को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे कि यहाँ पर है, इधर नहीं है। हम ये भी जान सकेंगे आया कि
कॉस्मिक स्ट्रिंग्स हैं कि नहीं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स आप समझ लीजिए धागों की तरह हैं जो सारी कायनात में बिखरी हुई हैं। शायद इफ दे आर देयर, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। पार्टिकल फिजिक्स के लोग बताते हैं कि ऐसी चीज हो सकती है। और अगर उस धागे का आप इतना सा भी टुकड़ा लें तो उसका वजन उतना ही है जितना कि जमीन का है, पूरी जमीन का है। तो हम इस नई एस्ट्रोनॉमी से वो भी देख सकेंगे। और शायद जो सबसे बड़ी और दिलचस्प चीज ये कि जब कायनात वजूद में आई बड़े धमाके के नतीजे में, बिग बैंग के बाद, तो उस वक्त ग्रेविटेशनल वेव्स खारिज हुई थी और वो ग्रेविटेशनल वेव्स अब भी मौजूद हैं। उनको कैसे देखा जाए? सो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी विल हेल्प अस ऑन दैट एज वेल। आज से 400 साल पहले पहली दूरबीन इजाद हुई थी, गैलीलियो ने बनाई थी। और उस दूरबीन से उसने आसमान की तरफ देखा और अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको बुला के दिखाया कि वो अतारत है, जुपिटर है, उसके गिर्द चांद है और चांद नजर आए एक दूसरे सैयारे के गिर्द। उसके बाद उससे बड़ी टेलीस्कोप्स बनी और बड़ी बनी, बनती चली गई। और आज कायनात के बारे में हम कितनी ज्यादा मालूमात रखते हैं महज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से। तो अब एक नया दौर खुल रहा है। इट्स एन एब्सोल्युटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द यूनिवर्स थ्रू ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी। इसीलिए मैं इतना ज्यादा खुश हूं आज, और इसीलिए मैं फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। बहुत से सवाल होंगे, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवन। इधर माइक की जरूरत होगी क्योंकि वहां लोग नहीं सुन सकते। सर, आपने बताया कि जब कोलिजन हो गई उसके बाद कोई वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई, तो जब उसका बॉडीज का इतना मोमेंटम था कि वो स्पिन कर रही थी, तो अचानक से उनका मोमेंटम कहाँ गायब हो गया? दो ब्लैक होल्स जब एक दूसरे के गिर्द घूमते घूमते आखिर एक में जम हो जाते हैं, तो वो ब्लैक होल भी घूम रहा है। जब वो घूमता है तो उससे ग्रेविटेशनल वेव्स तो निकलेंगी, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होगी। लिहाजा जो बड़ा इवेंट था जो सितंबर में देखा गया, वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। वो दो ब्लैक होल्स गए, खत्म हो गए, दे हैव बिकम वन। सर, क्या हमें नेचर पता है इन वेव्स की, व्हाट इज वेविंग इनसाइड ग्रेविटेशनल वेव्स? Yes, this is what I try to say. This is the nature of gravitational waves. Space time को आप एक रबड़ की चादर की तरह समझें। वो चादर ऑसिलेट कर रही है, उसके ऊपर ये पार्टिकल्स रखे हुए। मैं भी पार्टिकल्स का बना हूं, आप भी पार्टिकल्स के बने। लिहाजा जब वेव यूं गुजरेगी, देखिए ये वेव यूं जा रही है, इज गोइंग इनटू द प्लेन ओवर हियर, और उसके नतीजे में ये फासला बढ़ता है कम होता है, ये फासला कम बढ़ता है कम होता है। तो मेरी लंबाई में या लाइगो के इस आर्म की लंबाई में कमी बेशी होगी। सो यस, वी नो द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। इट इज द ऑसिलेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाइट वेव्स में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो ऑसिलेट करते हैं। यहाँ पे स्पेस एंड टाइम आर ऑसिलेटिंग।
सर ये जो LIGO है ये 2 डायमेंशनल है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स तो किसी भी तरफ से आ सकती हैं। एक डायमेंशन तो ऐसी रहेगी कि अगर उधर से आएंगी तो उसे हम रीड नहीं कर सकेंगे फॉर अ पर्टिकुलर LIGO। और जो लेज़र बन रहा है क्या वो 3 डायमेंशनल होगा, तीनों तरफ से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकेगा? नहीं, तीनों तरफ से नहीं। देखिए यहाँ पर तो मैं फिर ये कहूँगा कि सी द ग्रेविटेशनल वेव इज गोइंग इन लाइक दिस, तो अगर उधर से ग्रेविटेशनल वेव आई वो इसके तरफ आएगी। अगर ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से आए इधर से तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, वो डिटेक्ट नहीं होगी जब तक कि डिटेक्टर का रुख ना मोड़ा जाए। जो सवाल आपने लीजा के बारे में किया, लीजा भी डायरेक्शनल है और इसका डायरेक्शनल होना अच्छा भी है, इसलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो इवेंट कहाँ पर हुआ था। न सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि फासला कितना है, लेकिन किस रुख पे है। तो इसकी ओरिएंटेशन जैसे आप बदलेंगे वैसे उसकी सेंसिटिविटी भी बदलेगी। माइक जिसके पास आ जाए। क्या ग्रेविटेशनल वेव्स कोई रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं इसी मटेरियल? सॉरी मैं देख नहीं सकता हूँ। हाँ, क्या ग्रेविटेशनल वेव्स स्मॉल स्केल पे रेजोनेंस प्रोड्यूस करती हैं? यस, वो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जो स्टील बार यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में रखा गया था, बनाया गया था, जिसके अंदर पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर था, उसकी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सो व्हेन ग्रेविटेशनल वेव्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी arrive on the detector, they will get maximum amplification. ग्रेविटेशनल वेव्स बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी वेव्स हैं, उस सेंस में वो रेजोनेंस पैदा कर सकते हैं। Thanks for a very nice lecture. आपने ब्लैक होल के बारे में बताया कि उससे लाइट जो है वो बाहर नहीं आ सकती, सब जानते हैं, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल वेव से हम ब्लैक होल होराइजन के अंदर कभी भी देख सकेंगे या नहीं? यहाँ देखिए, ये ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, मर्जर। ब्लैक होल्स अगर स्पिन कर रहे हो तो उससे भी ग्रेविटेशन वेव्स खारिज होती हैं, मगर ये ग्रेविटेशन वेव्स उसके अतराफ के स्पेस की परटर्बेशन, उसके इर्ताश की वजह से पैदा होती है। हाँ, अगर दो ब्लैक होल्स आपस में यूं टकरा रहे हैं तो वो ग्रेविटेशन, सवाल ये है कि वो ग्रेविटेशन वेव्स कहाँ से निकल रही हैं? क्या वो ब्लैक होल के अंदर से निकल रही हैं या अतराफ के स्पेस से? उसका जवाब है अतराफ के स्पेस से। ब्लैक होल के अंदर जो है उसके बारे में कोई मालूमात कहीं से नहीं आ सकती। ग्रेविटी वेव्स, source is just the mass. So maybe there is a possibility कि हम शायद, चूंकि लाइट नहीं आ सकती तो हम कहते हैं होराइजन के अंदर जो कुछ है that is absolute, उसके बारे में हम नहीं कुछ जानते। इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ये है कि दो हेवी मैसेज हैं और दोनों ब्लैक होल्स हैं। ओके, अतराफ का जो स्पेस टाइम है वो बहुत बुरी तरह से डिफॉर्म हुआ है और ये नॉन स्टैटिक स्पेस टाइम है, नॉन स्टैटिक स्पेस टाइम से वेव्स निकलते हैं। Yes. So my question is, will this discovery help us in the education of basic forces? जरा खड़े होकर कीजिए ना,
My question is, will this discovery help us in the unification of basic forces, which is the goal of string theory these days? What forces? The unification theory. ग्रेविटेशनल वेव्स की दरियाफ्त से क्या हम यूनिफिकेशन के नजदीक पहुंचेंगे? आंसर इज नो। ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स अभी हमने देखी हैं, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की कोई बात नहीं है। ये तो वो चीज थी जो 100 साल पहले प्रिडिक्ट की गई थी और जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कोई अमल दखल नहीं है। तो इसमें हाँ बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं, मगर ये नहीं कि दिस इज एनी काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल ब्रेक थ्रू। इट्स नॉट दैट। जो बिग बैंग के इवेंट से जो ग्रेविटेशन वेव्स बनी थी, तो आया वो हमारे पास से गुजर चुकी हैं या अभी फ्यूचर में गुजरेंगी? जो ग्रेविटेशनल वेव्स बिग बैंग के वक्त बनी थी, वो आज हमारे अतराफ में हर तरफ फैली हुई है। देखिए, कायनात का मरकज हर जगह है। कायनात यहां से भी शुरू हुई और यहां से भी, और मिल्की वे सोलर सिस्टम के दूसरी तरफ भी, और हर जगह। तो हालांकि ये बात बड़ी अजीब लगती है, मगर यूं समझें कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के ऊपर निशानात हैं जगह जगह। अब हर नुक्ते के गिर्द दूसरे नुक्ते हैं, और अगर ये नुक्ते बराबर फैलाए हुए हों तो आप ये कह नहीं सकेंगे कि आप इस नुक्ते पर हैं या उस नुक्ते पर हैं। ये गुब्बारे की सतह के ऊपर आपको हर जगह अतराफ में वही चीज दिखाई देगी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो उस वक्त बनी थी बिग बैंग के वक्त, वो कायनात में हर जगह बराबर है। हाउ वी सी देम इज अनदर मैटर, वो बहुत मुश्किल है। जी, खड़े हो। सर, हमें इस बात का कैसे पता चला कि ये वेव्स कितना अर्सा पहले जनरेट हुई थी? ओके, तो ये ग्रेविटेशनल वेव की स्ट्रेंथ है। अच्छा, अब जितना आप ज्यादा दूर जाते हैं उसके सोर्स से, तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। उस स्ट्रेंथ को जब आप जमीन पर नापते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि उसका सोर्स कितनी दूर है। साथ साथ उसके पैटर्न को देखकर आप जान सकते हैं कि सोर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी। तो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी इस लिहाज से ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी से बहुत मुख्तलिफ है। ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में आपको ये नहीं पता चलता आया कि कोई चमकीला चमकता हुआ नुक्ता वो दूर है कि नजदीक है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि उससे लाइट किस शिद्दत की आती है। इससे आप दोनों चीजें बता सकते हैं कि वो सोर्स पे कितना स्ट्रांग है और वो फासला कितना है। सर, आई एम फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस। मेरा सवाल ये है कि इससे ह्यूमैनिटी को क्या एडवांटेज होगा? भाई देखिए, आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कोई फायदा नहीं। मगर ये बिल्कुल वही सवाल है जो 400 साल पहले किया जाता था, उसी तरह का है। क्या फायदा अगर हमने ये जान लिया कि दुनिया गोल है या चक्रीय? क्या फायदा अगर हमने ये मालूम कर लिया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज जमीन के गिर्द घूमता? आखिर उससे फिर ना हमारे कारोबार पे कोई फर्क पड़ता है, ना उससे फसलें बेहतर होती हैं। लेकिन उन दरियाफ्तों के बाद दुनिया बदल गई, क्योंकि इंसान की सोच पे उसको
इतना आगे ले जाती है कि फिर उसके वो मसरफ ढूंढता है। अमूमन मसरफ अगर ना भी हो, लेकिन आप हमें वो ब्लैक होल से क्या है, टकराए आपस में, हमें क्या, ये भी तो हो सकता है एक नुक्ता नजर। तो जो दुकानदार है वो इसी तरह से सोचेंगे, लेकिन हम दुकानदार नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि एक तजस्सुस था, एक शौक था जानने का कायनात के बारे में। That is what brought you here. फायदे का अलावा इसके मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है। यही बात आप बिग बैंग के बारे में कह सकते हैं कि चलिए आज हमें पता है कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई थी, लेकिन उसका फायदा क्या? बात यह है कि इससे जहनसाजी होती है, इससे फिर हम अगले सवाल तक जा सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि हमारा अपना क्या मकाम बनता है कायनात के अंदर। सर माइक इसके पास है, तुम खड़े हो जाइए प्लीज। अच्छा सर ये जो इवेंट हुआ है दो ब्लैक होल्स के कंबाइन होने से, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है इस तरह के और इवेंट्स विद इन अ ईयर लाइगो करें सर? ओके सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी मैंने कहीं पर लिखी थी। हाँ, it is about 0.1 events per year at 20 megaparsecs. एक पार्सेक 3.3 लाइट ईयर्स है, यानी कि अगर 66 मिलियन साल दूर कोई ब्लैक होल इवेंट होता है तो 10 साल में आपको एक दफा दिखाई देना चाहिए ऑन द एवरेज। ये इस वक्त की सेंसिटिविटी है। जब लीसा ऊपर जाएगा तो उसके बाद सेंसिटिविटी में हजारों गुना का इजाफा होगा, यानी कि हम बहुत ज्यादा इवेंट्स उस वक्त देख सकेंगे। जी जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेल का। मैं वैसे बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एफएससी तक मैंने फिजिक्स पढ़ी और मैट्रिक एफएस में हमने यही देखा कि ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं न्यूटोनियन वे में। जब मैं अपने इधर एमएससी के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, मैथफिजिक्स वालों से भी, तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो स्पेस टाइम कर्वेचर के आइंस्टाइनियन रेफरेंस से बात करें। आप टीचर हैं और आपने बुक भी लिखी है फिजिक्स की भी, तो क्या है ये इतना बड़ा? क्योंकि ठीक है न्यूटोनियन हेल्प कर देती है हमें डेफिनेशन की हद तक, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू नाउ। वी नो दैट इट हैज टू बी डिफाइंड इन आइंस्टाइनियन वे। तो क्यों नहीं हम अभी तक मैट्रिक 8वीं क्लास से ही ग्रेविटी की डेफिनेशन आइंस्टाइनियन वे से करें, बजाय से कि ये है वो भी हमें हेल्प तो कर रही है। ये तो ऐसे ही है कि हम इवोल्यूशन पढ़ाएं ना पढ़ाएं, और ये कहें क्योंकि आप मेडिकल साइंस कर रहे हैं, आप डार्विन पढ़े ना पढ़े एक ही बात है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा कहा जाता है। देखिए, जब आप स्कूल में उर्दू सीखते हैं तो कायदे की मदद से सीखते हैं। अगर आपके सामने इकबाल की शायरी रखी जाए लेकिन अब एफएससी बीएससी एमएससी के लेवल पे देखिए न्यूटोनियन लेवल पर ही डिफाइन किया जाता है ग्रेविटी को। मैंने बहुत काम इवन मास्टर के स्टूडेंट्स को देखा, जब मैं बात नहीं करूँ वो कि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन दे ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन। अच्छा, फिजिक्स में आप मरहला ब मरहला स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो हम शुरू में स्टूडेंट्स को न्यूटन्स लॉज पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाते हैं। उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हमें जिस फिजिक्स से ताल्लुक होता है, जिससे वास्ता होता है आम कामों के लिए, और आम काम से मतलब ये कि 99.9% कामों के लिए, तो वहाँ हमें आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जानने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा
और देखिए फिजिक्स एक बहुत वसी मजमून है, इल्म का समंदर बहुत गहरा है, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो हाँ, आपकी बात ठीक है कि ग्रेविटी की असलियत तो वो है जो आइंस्टाइन ने बयान की थी, लेकिन इसको तफसील से पढ़ना जरूरी नहीं है। बस अगर हमें कुछ अंदाजा हो वो काफी होता है। तो आप बहुत ज्यादा मायूस ना हो इसमें। सर यस सर, जब दो ब्लैक होल्स आपस में कंबाइन हुए तो हम ये कहा कि ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस हुई। हमारे पास ऐसा क्या एविडेंस है कि ग्रेविटेशन वेव्स ही प्रोड्यूस हुई? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती थी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन उनकी मिक़दार काफी कम है। दूसरे ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी 1/r² से घटती है। मतलब ये कि अगर ये लाइट बल्ब है तो मैं इसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ पर देखूं तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज एज 1/² ऑफ द डिस्टेंस, जबकि ग्रेविटेशनल वेव की इंटेंसिटी 1/r से डिक्रीज होती है। लिहाजा हम ग्रेविटेशनल वेव के सोर्स को देख सकते हैं वो कि वो बहुत बहुत दूर है। तो बात आपकी ठीक है कि जब ये ब्लैक होल्स आपस में या दो सितारे आपस में टकराएंगे, मुर्दा या जिंदा, तो उससे एक्सरे बर्स्ट निकलेंगे, उससे विजिबल लाइट निकलेगी, लेकिन उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो निस्बतन कम होगी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ग्रेविटेशनल वेव्स। सर, अगर एक ग्रेविटेशनल वेव आ रही है और उसके सामने एक मास पड़ा है तो उसके साथ उसकी इंटरेक्शन कितनी होगी? इसके बाद दो सवाल और फिर मेरा ख्याल है हमें इसको खत्म करना होगा। बात आपकी बिल्कुल, आपने ठीक समझा इसको कि अगर एक मास हो और ग्रेविटेशनल वेव गुजरे उसके सामने से या उसके बीच में से, तो उस मास के ऊपर क्या असर होगा। वो जो मैंने बताने की कोशिश की कि एक तरफ वो मास सिकुड़ेगा, दूसरी तरफ फैलेगा और ये आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ना, उसमें से एनर्जी निचोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस। सर, इस वेव्स की इंटेंसिटी क्या होगी और इसकी डेंसिटी होगी और आप वो क्या कहाँ हैं? कहाँ हैं? किस जगह? ओके जी, कहिए। सर, इस वेव्स की इंटेंसिटी क्या होगी और अगर ये इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये डेंस मटेरियल है, क्योंकि आप कहते हैं ब्लैक होल डेंस मटेरियल है, तो इसकी क्या डेंसिटी होगी जो वेव्स इमिट्स हुई हैं, और टाइम इसका क्या होगा? जो वेव्स हम तक पहुंचती है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी विल बी बिटवीन 200 and 800 साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्ज। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये विजिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में है। इसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत कम है। H जो है, which is the strength of the gravitational wave, is very 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 small, 0.00000. What's the density? Density of what? The waves. नहीं, waves don't have density. वो तो matter की density होती है ना। You can talk about the energy density of the wave, लेकिन वो बहुत कम है। Okay, so last question. सर, जो ब्लैक होल से रेडिएशन, कहाँ हैं आप? सर, जो ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल से आ रही है, क्या वो ब्लैक होल के अंदर की कोई बात हम तक ला रहे हैं यहाँ पर? ये सवाल पहले किया गया है। जो वेव्स हम तक पहुंचती हैं ब्लैक होल, 2 ब्लैक होल्स के मिल जाने से, वो उससे बाहर से आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।